Okay. This call is now being recorded. All right. The recording has started. Sir may have given you the instructions about recordings. So if anyone misses something, or if you wish to hear the lecture again, you can visit Santosh Takle's YouTube channel, and all the recordings are listed over there, and you can watch them again if you have any doubts or you want to listen them again, or if anyone misses something. So one student in last lecture missed the class, right? And she was late, so you can see that recording. My recording, that recorded video is available now. All right. So without wasting any more time, let's start. Shall I start? I'm waiting for your responses. Shall I start? Yes. Okay. Cool. So we were studying about plant structure and function. Basically, we were entering into the kingdom called Kingdom Plantae. There are, as you know, there are 5 kingdoms we studied in the first chapter, and we are in a basic way, very basic way, we are getting to understand little more about plants. So we are understanding their structure and what is the function of their structure. So let's revise quickly what we did in the last lecture. So we started with the structure of a plant, that is one of the organ you can call, and that is the root of the plant. So from today my exam start and my first paper was science. Okay, all right. All the best. If you have any doubt regarding the chapters which I have taught, you can comment and we will discuss at the end of the class. All right. 5 minutes before the end. All right. No, okay. Cool. So all the best for your exam. ठीक है अच्छे से करना. So we discussed about root, what is its function, and we studied first of all that how the plant develops right from its birth stage. So there is a seed, as you know. From seed the plants develop, and then plant gives fruits, and then fruits have seeds, and again from that seed the plants develop, and this cycle just goes on. All right. So the seed, okay, it develops into 2 parts, radicle and plumule. Okay, the radicle develops into root, and then plumule develops into stem. Okay, and this happens only in the monocot seed, that is dicot seed, that is dicotyledonous. All right. Radical and plumule theory or radical and plumule concept is understand the dicot seeds. ठीक है, हम लोग लास्ट के एक पैराग्राफ है उसमें इसे अच्छे से और समझेंगे. एंड मोनोकॉट सीड ओनली डेवलप वन पार्ट. ठीक है. और उसके जो रूट्स होते हैं वो डायरेक्ट स्टेम से निकलते हैं. ठीक है. हमने फिर बाद में क्लासीफाई किया. वी क्लासिफाइड द रूट्स इनटू 2 पार्ट, that is tap root, and the second one is fibrous root. Okay. We some differences. Voice is breaking in middle. Okay, hello, let's check the audio again. Hello, is my audio clear now to everyone? Okay, all right, okay. So I was talking about how we classified the roots into taproot and fibrous root. Okay, and let's discuss those points again in a quick way. So taproot and fibrous root. First point is that dicotyledonous plant or dicot seed shows taproot, all right, and while monocot seed shows fibrous roots. This was the first point. Second point is taproot consists of one primary root, which is also known as mother root. Okay, and it is the strongest part of the root. All right, while fibrous root consists of cluster of slender roots. बहुत सारे क्लस्टर्स रहते हैं, सॉरी क्लस्टर एक रहता है बहुत सारे स्लेंडर रूट्स का. स्लेंडर का मतलब है बहुत पतले 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 रूट्स. ठीक है, जो स्टेम से निकलते हैं, डायरेक्ट स्टेम के बॉटम सरफेस से निकलते हैं. दैट वाज द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज दैट taproot consists of a root cap. Taproot consists of root cap. Root cap is nothing but a protective layer
ठीक है, which is around the root tip, which helps in penetration of the root in the ground. ठीक है, so it can travel as deep as it can because of the root cap without taking any injury. ठीक है, root cap is only present on the mother root or the primary root. ओके, जो टिप मदर रूट और प्राइमरी रूट का जो टिप है उसको ऊपर ही रूट कैप रहता है. While in fibrous root there is no such thing as root cap. ठीक है, that was the third point. Fourth point is that a taproot develops from radical. ठीक है, जो मैंने बताया कि डाइकॉट्स ही रेडिकल और प्लूमुल शो करते हैं, वाइल मोनोकॉट सीड्स ऐसे कुछ शो नहीं करता. रेडिकल और प्लूमुल एक ही पार्ट निकलता है सीड से. ठीक है, सो टैप रूट्स डेवलप फ्रॉम रेडिकल while fibrous roots develop from bottom of the stem. All right, आवाज आ रहा है ना सबको? ठीक है, so fibrous roots develop from bottom of the stem. That was the fourth point. Fifth point is कि taproot shows primary root, secondary root as well as tertiary root. That is in taproot. Yes, then that is in taproot. The primary root gets divided into secondary roots. The secondary roots further gets divided into tertiary roots, and those tertiary roots actually have root hairs. Okay, यहाँ पे दिखाया सिर्फ secondary root को root hair होता है. ठीक है, नहीं, लेकिन tertiary roots भी रहते हैं. tertiary root को actually root hairs होते हैं. ठीक है, while in fibrous root there is no such difference in size. Almost all roots are equal in size. ठीक है, that was the fifth point. Now example of plants which show taproots is hibiscus, tomato, mango. ठीक है, ये examples हुए taproot. Okay, and fibrous roots वाले plant के जो example है that is grass, rice, wheat, coconut tree. ठीक है, तो एक मिसकंसेप्शन रहता है कि फाइब्रस रूट्स वाले प्लांट हमेशा छोटे रहते हैं. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. फाइब्रस रूट्स वाले प्लांट बड़े भी रहते हैं, यानी ट्री भी रहता है, वो ट्री भी रहता है. ठीक है, ट्रीज आर बिग, प्लांट्स आर स्मॉल. सो वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है, टू क्लियर दिस मिसकंसेप्शन इज कोकोनट. कोकोनट इज अ बिग ट्री एज यू नो, एंड इट हैज फाइब्रस रूट्स. ओके, और एक एग्जांपल था जो लीफ में हमने देखा था, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन. ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन. ठीक है, एक बार लीफ में आने के बाद वापस हम लोग को रिवाइज करेंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट रूट्स. ठीक है, देन वी सॉ एडवांटेजियस रूट, कैसे मॉडिफाइड रहते हैं रूट्स कुछ कुछ. ठीक है, व्हाई टू डू एडिशनल फंक्शंस. To do some additional functions, there are the roots are modified like air roots, state roots, runners, breathing roots. ठीक है, breathing roots का example mangroves. Uh, then one more point I missed in the past lecture is that, see, some of the roots also do the function of one function of stem, that is storing of their food. ठीक है, वो रूट्स क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एनर्जी का फॉर्म है. कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड है. ठीक है, केमिकल कंपाउंड. ठीक है, जो एनर्जी देता है किसी भी लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. सो ये रूट्स मॉडिफाई करते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करने के लिए. और इसका एग्जाम्पल क्या है, रेडिश, कैरेट, बीट रूट. ऑलराइट, इसके आप इमेजेस देख लेना. मैंने अभी इमेजेस एक पीडीएफ में कंपाइल नहीं की है. ठीक है, या फिर मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा. ऑलराइट, सो दिस वाज द व्हिच आई मिस्ड इन द लास्ट लेक्चर. ठीक है, सो देयर इज अ बानियन ट्री के बारे में बताया, कैसे मॉडिफाइड रूट्स है उसके बारे में आप पढ़ लेना. ऑलराइट, देन वी सॉ स्टेम के कुछ पार्ट्स देखे. ठीक है, like the bud, which is the tip or the apical end of the stem, मतलब end और apex का. ठीक है, then this is the stalk, which is also known as petiole. What does petiole do? It connects stem and the leaf. All right, then
how does stem grows? There are nodes and internodes in between. Internodes is distance between the two nodes. All right, and from the nodes, that is from a section, a leaf grows. All right, or a flower grows. ठीक है, आज हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से. That was all about. Then we saw leaf. के लीफ के कुछ नेमिंग्स देखे हमने. ठीक है, दिस बॉडी इज नोन एज लीफ मार्जिन और लैमिना. The end of the lip or tip of the leaf is known as leaf apex. Okay, sorry, the body is known as leaf blade. I'm sorry, the body of the leaf is known as leaf blade or lamina. और ये जो बाउंड्री है इसे लीफ मार्जिन. And then I talked about petiole. Alright. Then stipule are the leaflets. ठीक है, जो लीफ के बेस पे उगते हैं. Then we classified leaves according to their structure. Basic सा classification है. Entire, dentate and lobe. According to their physical appearance, we classified them. ठीक है. Then we classified again leaves as simple leaves and compound leaves. Okay, जो simple leaves होते हैं उन्हें एक single midrib होती है. They have single midrib. ठीक है. And compound leaves का हमने images देखा. Okay, once again, let's check the audio. My voice was breaking. A student is saying, "Hello, everyone." Am I? The voice is breaking. Just a minute. Let me check. Clear? Okay, some students are saying clear. So, till now, was it clear? Till now, my audio was clear. Yes, yes. Okay. जिन्हें भी प्रॉब्लम आ रहा है एक बार रिफ्रेश कर लो. नाउ इट इज क्लियर. ओके ओके, रेंज में बेटा करो. ठीक है, और अगर कुछ भी मिस करते हो तो डोंट वरी, वी हैव द रिकॉर्डेड इन मिडल ब्रेक. यस यस, ओके ओके. मेरा भी इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई, बट नो इश्यू. अगर तो रिकॉर्डेड वीडियोस है, आप अच्छे से मिल जाएगा. ठीक है. So we saw a picture of simple leaves and compound leaves and that cleared our doubt. All right. Again, according to the leaves arrangement on the stem, there are different. Again, we classified the leaves, that is alternate, decussate, opposite, and whorled. Okay. And then we saw a very beautiful concept, that is reticulate venation. No, sir, it was very much clear. All right. ठीक. रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन. ठीक है, इसे समझने के लिए बस ये पिक्चर देख लेना. ठीक है, ये है रेटिकुलेट वेनेशन, ऊपर वाला लीफ, और जो नीचे वाला लीफ है ये है पैरेलल वेनेशन. दीज आर द वेन्स ऑफ द लीफ. ठीक है, अगर आपको इसे अच्छे से एकदम देखना है तो किसी भी लीफ को ले लो और अपने किसी भी एक किताब में रख दो. किताब में रख लो कुछ हफ्तों के लिए. ठीक है, ड्राई किताब में रख लो, और तभी ये जो लीफ का ग्रीन वाला पार्ट डिफॉर्म होने लगेगा. ठीक है, गायब होने लगेगा बेसिकली, और आपको जो वेन्स है बहुत क्लियरली विजिबल होंगे. तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो किसी भी लीफ का. करके देखना, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है. और ठीक है, सो दिस इज ऑल वी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास. ठीक है, अब तक किसी को कुछ डाउट क्लास से रिलेटेड? एनी डाउट? नो. ओके. See, I don't give definitions in the class. ठीक है, because I think definitions you get in the Google और digest में भी है, और यहाँ पे आपके टेक्स्ट में अच्छे से डिफाइन है कुछ चीज़ों को. लेकिन आज मैं अपने डेफिनेशंस निकाले कुछ. जो भी अब तक हमने कवर किया उसके डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे गूगल में, और आपके पास डाइजेस्ट होगा तो. बिकॉज आफ्टर ऑल इन द एग्जाम डेफिनेशन मैटर्स, कि कैसे आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हो, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हो, एंड दैट इज वेयर वी गिव होमवर्क. ठीक है, सो दिस होमवर्क आप पता नहीं मुझे क्यों, लेकिन स्टूडेंट्स सब लोग ये नहीं कर रहे, अपलोड नहीं कर रहे. ठीक है सर, कैन यू प्लीज रोटेट योर स्क्रीन?
Is it not visible to you clearly? You can rotate your mobile. ठीक है, आप अगर मोबाइल रोटेट करोगे तो आपको एकदम बड़ा क्लियरली दिखेगा, लेकिन मैं लैपटॉप पे प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी, एंड यस इट इज विजिबल। ठीक है, आप मोबाइल रोटेट करोगे तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। ठीक है, अभी मैं लैपटॉप पे ये कर रहा हूँ तो आई कांट सर, आई डोंट गॉट योर होमवर्क। ओके, आर यू एडेड इन द गूगल क्लासरूम? प्लीज कम्युनिकेट विद द सर अबाउट दिस। ठीक है, जो भी गूगल क्लासरूम में एडेड है उन्हें होमवर्क दिखेगा। आई हैव मेंशन्ड द डेट्स, स्पेसिफिक डेट्स ऑफ आवर लेक्चर टू द होमवर्क, ताकि आपको पता लगे कि ये होमवर्क किस दिन का है। इट इज इन गूगल क्लासरूम, यस। और प्लीज अपलोड कर क्या करें। ठीक है, इसलिए मैंने किसी का होमवर्क अब तक रिटर्न नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने, कुछ एक दो बच्चे स्पेसिफिक है जो होमवर्क हमेशा करते हैं। दिस इज जस्ट गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो होमवर्क टाइम पे किया कीजिए। ठीक है, ऑलराइट, चलो, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, so let's understand a very important organ or a structure of a plant, which is known as flower. We see flower as a very decorative thing, डेकोरेशंस में यूज करते हैं फ्लावर्स को, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस प्लांट के पर्सपेक्टिव से कितना इम्पोर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है, ये हमें पता नहीं था, बहुत जनों को पता नहीं रहता। बेसिकली फ्लावर्स हेल्प इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये कोई प्लांट की डेकोरेशन या मेकअप नहीं है प्लांट का। प्लांट अपने आप को अच्छा दिखने के लिए फ्लावर नहीं उगाते, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ द फ्लावर। यू कैन से दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर। उसका पर्पस यही रहता है फ्लावर का, कि और ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग मतलब क्या, नेक्स्ट जनरेशन, अपने बेटे। ठीक है, अगर आपके बेटे अभी होंगे, जब आप बड़े होंगे, शादी होगी, आपके बेटे होंगे, तो उन्हें ऑफस्प्रिंग कहेंगे। ठीक है, सो फ्लावर का यही पर्पस होता है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर, दैट इज रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ऑलराइट, सो साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट है, जैसे हमने कार्ल लीनियस के बारे में पढ़ा था। कार्ल लीनियस ने हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया, राइट, फर्स्ट लेसन में, अगर आपको याद हो। तो उन्होंने कहा कि फ्लावर, उन्होंने डिस्क्राइब किया फ्लावर को, आफ्टर फ्लावर सीड कम्स फ्रॉम इट, यस यस, वेरी गुड, सीड कम्स फ्रॉम द फ्लावर। ठीक है, तो किसी ने माइक ऑन किया क्या? प्लीज ऑफ, सब लोग माइक को ऑफ करेंगे, ऑलरेडी। ठीक है, सो कार्ल लीनियस ने फ्लावर को कैसे डिस्क्राइब किया है कि इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, फ्लावर is a modified stem. Flower is nothing but a modified stem. ठीक है, इसका एक डेफिनेशन देखते हैं। अभी आप पेन और बुक लेना और लिख लेना, लिसन केयरफुली। ऑलराइट, सो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड शूट। ठीक है, कंडेंस्ड शूट यूजफुल फॉर रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। आई रिपीट, डोंट वरी, जस्ट अ मिनट। ओके, flower is a modified and condensed shoot। मैं इसकी स्पेलिंग लिख रहा हूँ, condensed shoot useful for reproduction in angiosperm, just a minute, angiosperm plants। ठीक है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड शूट यूजफुल फॉर रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। इसे ब्रेक करते हैं और समझते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड शूट। कंडेंस्ड शूट का मतलब होता है शॉर्ट स्टेम। ठीक है, कंडेंस्ड शूट का मतलब होता है शॉर्ट स्टेम, छोटा स्टेम। ठीक है, फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम है जो छोटा है साइज में। इसका पर्पस क्या है? रिप्रोडक्शन करना
इन एंजियोस्पर्म। अभी ये टर्म एंजियोस्पर्म, पहले तो बताओ क्या पढ़ा है आपने, कभी सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट एंजियोस्पर्म? यस, कैन यू डिस्क्राइब इन शॉर्ट? नो, ठीक है, नो, ओके, डोंट वरी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट। Again, according to the reproduction process which plants do, we are classified. Yep, six. Okay. Okay. According to the reproduction process which plants do, we have classified plants in two parts: angiosperm and gymnosperm. ठीक है, दोनों वर्ड्स को मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, समझते हैं ये दोनों का अर्थ क्या है? ठीक है, तो अभी लिख लो एंजियोस्पर्म। So seed in angiosperm, seed is produced by flowering plants and is enclosed within an ovary. ठीक है, रफ में लिख लेना, कुछ प्रॉब्लम नहीं। एंजियोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म सीड, इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स, ठीक है, I'll rectify, in angiosperm plants seed is produced flowering plants and is enclosed within an ovary. ठीक है, डोंट वरी, मैं सब बताऊंगा ओवरी वो सब क्या रहता है। ओके, अभी के लिए डेफिनेशंस लिख लो। और इन जिम्नोस्पर्म सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड आर अनएनक्लोज्ड और नेकेड। ठीक है, एक्सपोज होते हैं ये एनवायरमेंट को। इन जिम्नोस्पर्म सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड आर अनएनक्लोज्ड और नेकेड। ठीक है, let me repeat again for angiosperm and gymnosperm. In angiosperm, seed is produced by flowering plants and is enclosed within an ovary. इसके एग्जाम्पल है मैंगो, एप्पल। ठीक है, इन जिम्नोस्पर्म seed is produced by non-flowering plants and are unenclosed। ठीक है, enclosed के आगे un डाल देना, unenclosed, enclosed का ऑपोजिट, और नेकेड। ठीक है, भी समझते हैं। बेसिकली आप इनके बारे में, सर दिस इन दिस रिप्रोडक्शन व्हिच इज मेल एंड फीमेल, यस आई विल डिस्कस दैट। अभी फ्लावर के पार्ट्स में हम लोग अब तक घुसे नहीं है। ठीक है, तो ये डिटेल में समझेंगे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को। यस यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट सर, इट इज रिटन इन 6th स्टैंडर्ड। ओके, गुड। एंजियोस्पर्म प्लांट्स वही प्लांट्स है जो फ्लावर बियर करते हैं। ठीक है, और फ्लावर ही है, फ्लावर ही उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं या उनके ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। भाई जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं होते, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होते। ठीक है, उनमें कुछ स्ट्रक्चर अलग और रहते हैं, उन्हें हम लोग उसे कोन्स कहते हैं, CONES। ठीक है, कोन्स, कोन्स कहते हैं, और दैट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। ओके, इसके एग्जांपल है पाइन, स्प्रूस एक्सेट्रा। अभी इसके बारे में डिटेल में आप अगले सब्सिक्वेंट स्टैंडर्ड्स में आप पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स गो इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सो फ्लावर्स में हैव, मैं अभी पढ़ रहा हूँ पैराग्राफ, फ्लावर्स में हैव लॉन्ग और शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिसल। तो जैसे हमने पेटियोल पढ़ा था लीफ में, जो स्टेम और लीफ को कनेक्ट कर रहा था, वैसे ही स्टेम और लीफ को, स्टेम और फ्लावर को कनेक्ट करने के लिए पेडिसल होता है। ठीक है, दिस इज पेडिसल। Alright, the one end of the pedicel is expanded and swollen while the other is attached to the stem. ठीक है, एक एंड होता है जो swollen होता है, ऐसा इसमें ओवरी रहती है, ओवरी। ठीक है, आगे बात करेंगे ओवरी के बारे में। और एक एंड जो होता है वो स्टेम को अटैच होता है। ठीक है, petals and parts of the flowers are supported the receptacle। अभी इसी चीज को, सभी पूरे ये स्ट्रक्चर को रिसेप्टेकल कहते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। ओके, अभी एक एक समझते हैं। Gymnosperms are flowerless plants that produce cones and seeds. Yeah, the term gymnosperm literally means naked seed. Yes, very good. ठीक है, आपको पता है, अच्छा
अच्छी बात है, ऑल राइट, वेरी गुड. सो लेट्स अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. सो लेट्स स्टार्ट विथ कैलिक्स. कैलिक्स का डेफिनेशन लिख लो. सो एक मिनट करता हूँ. Sepals of a flower, sepals of a flower typically forming a whorl that encloses that encloses petals and forms a protective layer around the flower. In bud condition, okay, don't worry, I'm typing. In bud condition is calyx. ठीक है. सो कैलिक्स क्या है? ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो, ये लीफ जैसे छोटे छोटे पार्ट्स है, इन्हें कहते हैं सेपल्स. ठीक है, इन्हें कहते हैं, एक एक अगर इंडिविजुअली देखा जाए, अगर मैं इसे कट करूं और बोलूं तो इसे कहते हैं सेपल. ओके, लीफ लाइक पार्ट्स. और ये जब होल एज अ होल दे फॉर्म कैलिक्स. ठीक है, कनेक्टेड होते हैं फ्लावर से, उसे कहते हैं कैलिक्स. ठीक है. और कैलिक्स क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है? जो ओवरीज है या फिर बर्ड कंडीशन, लेट्स अंडरस्टैंड इज बर्ड कंडीशन. बर्ड मतलब उसे अब तक पेटल है, ये जो पिंक कलर के पेटल्स देख रहे हो, ये पेटल्स अब तक आए नहीं है. आपने देखा रहेगा किसी भी प्लांट में कि पहले आता है ब्लड और बर्ड, और बर्ड फिर डेवलप होता है, वो पेटल्स आते हैं तो पूरा एकदम डेवलप्ड फ्लावर मिलता है. ठीक है. तो कैलिक्स का काम यही है कि जब बर्ड कंडीशन में फ्लावर रहता है तो उसके जो छोटे छोटे पेटल्स है जो अब तक ग्रो नहीं किए, उन्हें प्रोटेक्ट करना. ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड कोरोला. ठीक है, कोरोला. एक मिनट सर, कैन यू प्लीज रिपीट? आई गॉट. ओके. सो कैलिक्स क्या होता है? अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे पार्ट्स. अगर मैं इसे सेपरेट करूं, ठीक है, अगर मैं इसे सेपरेट करूं तो इन्हें कहते हैं सेपल. ओके, इन्हें कहते हैं सेपल्स. और ये जो सेपल्स है, अगर सेपल्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो ये पूरे पार्ट को कहते हैं कैलिक्स. ठीक है. कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है? जब बर्ड कंडीशंस, नाउ व्हाट इज बर्ड कंडीशंस? बर्ड कंडीशंस इज एन अर्लियर फॉर्म ऑफ फ्लावर. ठीक है, पहले बर्ड आता है, देन बर्ड गेट्स डेवलप्ड इनटू फुल्ली फॉर्म फ्लावर. जब पेटल्स वो सब नहीं रहते तभी बर्ड कंडीशन होता है. ओके, उन्हें बर्ड बोलता है. और ये जो बर्ड के अंदर जो भी चीज है, पेटल्स है, ओवरी है, आपका स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये सब प्रोटेक्ट करने का काम कैलिक्स करता है. ठीक है, इन बर्ड कंडीशन. ऑलराइट, होप इट इज क्लियर. नाउ कोरोला. ठीक है. सो दिस इज मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट्स कॉल्ड पेटल्स. ओके. तो ये इंडिविजुअली, सर वी आर गोइंग so slow. My school just started before I had to finish fast, so I not understand the lesson you said. ओके, ऑलराइट. सी, आवर लेक्चर्स होते हैं एक हफ्ते में एक बार. सो हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कवर एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, इन कम से कम लेक्चर. ठीक है. सो कोरोला. सो कोरोला क्या रहता है कि ये जब पेटल है सब एक साथ जब जुड़ जाते हैं, इन्हें को कोरोला कहते हैं. ठीक है. कोरोला इज पेटल ऑफ फ्लावर्स typically forming a whorl within sepals and enclosing reproductive organs. ठीक है. ये इसका काम क्या है? वही जो कैलिक्स जो बर्ड कंडीशन में हमें प्रोटेक्शन देता था, वही कोरोला फुल्ली डेवलप्ड जब फ्लावर है तभी प्रोटेक्शन देता है सभी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को. ऑलराइट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज एंड्रोसियम. ठीक है. एंड्रोसियम
is the male reproductive part of the flower. So student was asking कि male reproductive और female reproductive क्या है, अभी हम लोग आगे. The androecium, background sound is coming. Okay, good background sound, just focus on my words, alright. मेरे कुछ घर के काम चालू है, ठीक है. We can end it. Okay, thank you. Alright, so androecium is a male reproductive part of the flower. ठीक है, तो क्या है, it consists of stamen. ठीक है, each stamen is made up of anther and filament. तो ये आप छोटा सा, प्लीज एक्सप्लेन कोरोला. कोलोरा, ओके, इट्स कोरोला एक्चुअली, ठीक है, नॉट कोलोरा. COROLL. So corolla is nothing but this cluster of platters. Okay, this cluster of platters is known as corolla. ठीक है, COROLL. All right, this cluster of platters on the flower structure is called corolla. ठीक है, and what is its function? Its function is the same as of calyx. ठीक है, कैलिक्स क्या करता था, बर्ड फॉर्म में जब बर्ड रहते, फ्लावर पूरा डेवलप नहीं है, बर्ड कंडीशन है, तभी वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, बल्कि पेटल्स को खुद प्रोटेक्ट करता था. नाउ कोरोला का भी यही फंक्शन है कि प्रोटेक्ट करना. ठीक है, और एक इसका सेकेंड फंक्शन क्या है मैं बताता हूँ. सो ये पेटल्स बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, राइट, इनको एक कलर रहता है और इन्हें एक ओडर रहती है. ओडर मतलब क्या, स्मेल, सुगंध. ठीक है, तो ये स्मेल क्या करती है, अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट. ओके, और ये अट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे. अभी पूछो मत कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, हम लोग आगे देखेंगे. अभी के लिए समझ लो कि इसका ये सेकेंडरी फंक्शन है, अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स को. ऑलराइट, सो दिस वाज एंड्रोसियम. एंड्रोसियम अगर आप ये छोटा पार्ट्स देखे, मैंने जूम किया है, ये देखे येलो कलर का और एक छोटा सा स्टेम है. ये छोटा सा स्टेम जैसा पार्ट जिसे फिलामेंट कहते हैं. बैकग्राउंड साउंड इज नाउ लिटिल बिट मोर लाउड. ओके, इग्नोर दैट, फोकस ऑन वर्ड्स. सो द फिलामेंट, ठीक है, स्टेम जैसा पार्ट, एक छोटा सा थ्रेड जैसा पार्ट, और इसे रहता है येलो कलर के जो डॉट दिख रहे हैं, उसे रहता है एंथर. ये पूरा मिलके होता है स्टेमन. ठीक है, इसे पूरा मिलके अगर मैं एंथर प्लस फिलामेंट इज स्टेमन. ऑलराइट, और ये पूरा बहुत सारे स्टेमन्स मिला के बनाते हैं, इसे कहते हैं एंड्रोसियम, विच इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ओके, मैं पॉलिनेशन में बताऊंगा इसका फंक्शन क्या है. अभी के लिए सिर्फ समझ लो एंड्रोसियम स्ट्रक्चर क्या. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू गाइनोसियम. ठीक है, so gynoecium is the female reproductive part of the flower. All right, रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल लगते हैं दोनों. ठीक है, सो फ्लावर में, प्लांट में ऐसा होता है, एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट, गाइनोसियम इज द फीमेल पार्ट. ठीक है, अभी देखते क्या है. सो गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ कार्पेल्स. A carpel consists of stigma, style and ovary. ठीक है, गाइनोसियम इज दिस पार्ट, रेड कलर का एक बड़ा सा स्टेम जैसा दिख रहा है, ये पूरा मिला के इसे हम गाइनोसियम कहते हैं. द होल पार्ट वी कॉल इट एज गाइनोसियम. ठीक है, द अपर पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा. यहाँ पे भी है, द अपर पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा. The upper tip of the gynoecium is known as stigma. The stem part, ठीक है, the rod-like stem part, which connects stigma and ovary. ठीक है, listen carefully. The stem part of the gynoecium, which connects stigma and ovary, is known as style. All right. And ovary is this. Ovary consists of egg cells. ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए एग सेल का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है.
ठीक है, इट हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले. सो ओवरी होल्ड्स दिस एग सेल्स, और ये एग सेल से फिर सीड प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, ओवरी के अंदर ही. ठीक है सर, बैकग्राउंड साउंड, वो आई कैंट रियली डू अबाउट बैकग्राउंड, सो मैंने सब रूम बंद कर लिया है. ठीक है, मेरे वर्ड्स क्लियर आ रहे हैं सबको? अब तक समझा मैंने क्या बोला है? कुछ प्रॉब्लम है वर्ड्स में? मैं जो बोल रहा हूँ आवाज का कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है चलो, सो कोऑपरेट विथ मी लिटिल. ठीक है, ऑल राइट. सो गाइनोसियम हो गया. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द और द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्लावर. ठीक है, और ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर. ये वर्टिकल सेक्शन है. वी कांट फोकस नाउ, इट इज मोर. ओके, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. मम्मी, मम्मी भागी का थोड़ा आवाज कम कर दीजिए. ओके, ठीक है. चलो, अभी आ रही है मेरी ऑडियो? क्लियर आ रही है क्या? बताओ जल्दी. इज माई ऑडियो क्लियर टू एवरीवन? और ठीक, चलो आगे बढ़ते. सो दिस इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर. ऑलराइट, आपको 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे जिसमें सेक्शन मतलब काटना पड़ेगा फ्लावर को. ऑलराइट, और अगर आप लोग एकदम सिमेट्री में काटते हो तो फ्लावर के जो भी दो पार्ट्स होंगे वो एकदम सिमिलर दिखेंगे आपको. ठीक है, which tells us nothing but which tells us that the flower is symmetrical. ठीक है. Now, after maturity, anthers burst and the pollen grains which are released fall on the stigma. ठीक है, सो अभी हम लोग पॉलिनेशन में घुस रहे हैं. सो एक टाइम के बाद जब फ्लावर हो चुका है, तभी ये जो एंथर है वो क्या है, फूट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं. और ये एंथर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं. ठीक है, और ये पोलन ग्रेन्स कहाँ पे ये करते हैं, फॉल करते हैं स्टिग्मा पे. ठीक है, और ये जो एक्ट है, the bursting of anthers and falling of pollen grains to stigma. ठीक है, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन. अभी आप, हेलो, ठीक है. सो हाँ, यस, सो दिस एक्ट ऑफ बर्स्टिंग ऑफ एंथर्स, ठीक है, एंड ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा. ऑलराइट, दिस एक्ट इज नोन एज पॉलिनेशन. ठीक है, ड्यू टू पॉलिनेशन ovules, egg cells in the ovary get fertilized. ठीक है, get fertilized मतलब fertilization is process where the egg cells and pollen grains basically combines and form a compound. ठीक है, इसके बारे में भी आप 10th स्टैंडर्ड में या 11th में शायद आप अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए जानने की जरूरत नहीं. ठीक है, सो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स फॉर्म सीड्स. ओके, सो क्या होता है बेसिकली, ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर में. ओके, एक टाइम के बाद मैच्योर कंडीशन में ये एंथर जो है बर्स्ट हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स निकलते, और पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे अटैच होते, स्टिक होते. स्टिग्मा से ये स्टाइल के अंदर से, ठीक है, जो मैं बोला था कि ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट कर रहा है, एक पाइप जैसा थिंग. ऑलराइट, एंड इट गोज टू ओवरी, अटैक, ओके, केमिकली रिएक्ट विद एग सेल्स. ठीक है, रिएक्ट्स विद एंड गेट्स फर्टिलाइज्ड, और ये प्रोसेस होने के बाद सीड्स फॉर्म होते हैं ओवरी अंदर ही, एंड दिस ओवरी गेट्स डेवलप इनटू अ फ्रूट. ठीक है, और आपको तो पता ही होगा फिर फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड होते हैं. सो बेसिकली दैट फ्रूट इज नथिंग बट डेवलप्ड ओवरी. ऑलराइट, डेवलप्ड ओवरी. ओके, सो दिस इज अबाउट पॉलिनेशन. अभी पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, सेल्फ
एंड क्रॉस। यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन अभी समझ लो, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। सो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि when the pollen grains when the pollen grains fall on the stigma of the same flower, ठीक है, listen carefully, when the pollen grains fall on the stigma of the same flower, that is known as self pollination। ठीक है, ये जो pollen grains है वो उसी के फ्लावर में, उसी के फ्लावर के अंदर, फ्लावर के स्टिग्मा पे अटैच्ड हुए और फिर वो ओवरी में गए और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, फिर सीड बन गए। ओके, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन is when these pollen grains fall on the stigma of stigma of different flower। ठीक है, when these pollen grains falls on the stigma of different flower is known as cross pollination। ठीक है, ये कैसे होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो पोलन ग्रेन्स है वो इधर स्टिग्मा पे ही अटैच होता है, यही फ्लावर पे खुद ही के। सो सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है, जब ये पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पे जाते हैं। अब ये कैसे जाते हैं, तो इसके एजेंट्स है विंड, ठीक है, वाटर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एजेंट है बीज एंड बटरफ्लाई। ठीक है, तो आप देखते हैं ना कि फ्लावर्स के अराउंड ये हनी बीज एंड बटरफ्लाई ऐसे मंडरा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो पेटल्स है ये अट्रैक्ट करते हैं उन इंसेक्ट्स को, ऑलराइट, और ये हनी बी और जो बटरफ्लाई है ये फ्लावर्स पे बैठते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये लोग नेक्टर बोलते हैं, नेक्टर एक फ्लूइड है जो कि फ्लावर में पाया जाता है। सो नेक्टर को सक करने लगते हैं और ये टाइम पे क्या होता है, ये पोलन ग्रेन्स उनके बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो बीज है एक फ्लावर पे ही नहीं रहती, दूसरे फ्लावर पे भी जाते रहते हैं। ऑलरेडी ये ट्रैवल करते रहते हैं फ्लावर टू फ्लावर, और ये ट्रैवलिंग में क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन्स दूसरे स्टिग्मा में ऐसे चला गया। कभी कभी ये विंड से हो जाता है, ऑलरेडी अगर फ्लावर पास पास में हो तो कभी कभी ये विंड से भी हो जाता है। और क्रॉस पॉलिनेशन हमें जेनेटिकली वेरी क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी देता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी देता है। उससे क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रिफर्ड एक्चुअली फॉर द प्लांट्स। क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन से जो प्लांट होता है उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, उसकी वजह से प्लांट और स्ट्रॉन्गर बनता है। ठीक है, बहुत बेसिकली बता रहा हूँ, प्लांट बहुत स्ट्रॉन्गर बनता है एज कम्पेयर सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, 7th स्टैंडर्ड के लेवल पे यू विल अंडरस्टैंड दिस when you go to 10th standard around, all right? So this plant is shown as hibiscus. Yes, I think, yeah, this is the hibiscus flower, yes. Okay, so last part pe, this was all about flowers ab tak। Okay, let's check again the voice. The student is facing a problem. Is my audio clear to everyone? Okay, hello, let me check। म्यूट भी नहीं है सर, यू आर ऑडिबल। ओके, सो जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है ऑडियो की, प्लीज लीव एंड अगेन लॉग इन। ठीक है, फ्रेश करें, अच्छे नेटवर्क में बैठा करें। ऑल राइट, सो लास्ट पार्ट है फ्रूट। ठीक है, एक बार जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, आपको सर इन मिडल इट इज ब्रेकिंग, ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है, कुछ नेटवर्क इश्यू के वजह से ब्रेक होना रहेगा, नो प्रॉब्लम सर, नॉट लॉट, ऑल राइट, ठीक, नो इश्यू। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं अगेन, जैसे कि क्या कहा मैंने, वहाँ पे शायद ऑडियो अच्छे से आएगी। और रेट और लिखा कीजिए जो भी मैं बता रहा हूँ, और लेक्चर के बाद इसे रिवीजन कीजिए, और प्लीज होमवर्क टाइम पे सबमिट कीजिए। ठीक है, आपके भले के लिए ही है ये, बिकॉज सर वी डोंट गेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स। सी यू विल नॉट गेट रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, यू हैव टू गो ऑन यूट्यूब, सर्च संतोष टकले, ठीक है, subscribe to his channel, all right, and then go into videos and then search for my
लेक्चर ओके, 7th स्टैंडर्ड लिखा रहेगा वहां पे, 7th स्टैंडर्ड और डेट भी रहती है. सर आई विल डू इट नाउ. So don't do it now, right now. After the lecture, you can see. Okay, ठीक है. तो fruit, we are talking about. अच्छा ओके. अब तक डाउट है क्या फ्लावर्स में? फ्लावर्स में पूरे अब तक जितना भी पढ़ा है मैंने अब तक किसी को डाउट है? सर डाउट. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. कुछ डाउट है क्या? आई एम आस्किंग टू यू, प्लीज कमेंट. हेलो, इसमें ऑडियो क्लियर? इसमें ऑडियो क्लियर? नो डाउट. व्हाट इज meant by carpel? All right. It is because it is asked in exam. ठीक है. See, just a minute. Just give me. मैं भी confuse हो गया हूँ. Okay. हाँ. So carpel is nothing but the whole stigma, style, and ovary. All right. स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, ये तीनों चीजों को एक साथ हम लोग कार्पेल कहते हैं. ओके, यहाँ पे लिखा है कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. In exam you have to just write this, a carpel is made up of stigma, style and ovary. ठीक है? Yes. Okay, fine. Any other doubt? No. Okay, cool. So this is the last of the chapter. So this is about fruits. So definition देखते हैं. Fruit is the seed bearing structure in flowering plants formed from ovary after flowering. Okay, I'm writing it. Fruit, आप भी साइड बाय साइड लिखिए. ठीक है. फ्रूट इज द सीड bearing structure in flowering plants formed from ovary after flowering. ठीक है. Fruit is a seed bearing structure in flowering plants formed from ovary after flowering. ओके, स्ट्रक्चर है ये प्लांट का. ठीक है, जो किससे डेवलप होता है? ओवरी से. कैसे डेवलप होता है ओवरी से? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, इसमें ओवरीज में सीड फॉर्म होते हैं एंड देन दैट ओवरी गेट्स डेवलप्ड इनटू फ्रूट. कैसे ओवरी में, सर रिटर्न गुड. कैसे ओवरी में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है? तो पॉलिनेशन की वजह से, कि बिकॉज ऑफ द पॉलिनेशन प्रोसेस द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा with the help of style goes to the ovary, okay, and reacts with egg cells to form fertilized seeds. All right, pollination कैसे होती है? फिर पोलन ग्रेन्स कैसे फॉर्म होते हैं? बिकॉज ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ एंथर्स. ठीक है. ओके, तो ये थी कहानी पूरी की फॉर्मेशन की. So we eat many पहला पढ़ते हैं, we eat many different types of fruits. Each type of fruits has its own characteristics. What is characteristics? उसकी एक खुद की आइडेंटिटी, उसका एक खुद का बिहेवियर, उसकी एक खुद की फिजिकल स्ट्रक्चर.
There are variations in their shape, color, taste, etc. अलग अलग फल खाए रहेंगे, आपको कोई भी दो फल का टेस्ट जो है वो सेम नहीं लगेगा. ओके, बहुत डाइवर्सिटी होती है. So mango contains only one seed, whereas jackfruit consists of many small fruitlets. ठीक है. तो आंबा खाल्ला असेल आपण, ठीक आहे, आम खाया रहेगा आपने. तो आम में कैसा एक गुठली रहती है, बस जस्ट वन सीड, वन बिग सीड रहती है. while there are some fruits which contains more than one seed, okay, multiples. ठीक है. एंड ऐसे भी कुछ फ्रूट रहते हैं जो फ्रूटलेस कंसिस्ट करते हैं. वन ऑफ द एग्जांपल इज जॅक फ्रूट. हे जॅक फ्रूट त्याला फणस म्हणतो आपण मराठीमध्ये. ठीक आहे. ऑब्झर्व द फ्रुट्स ऑफ बेर. बेर म्हणजे बोरचं झाड. ठीक आहे. बेर हिंदी में कहते हैं बोर, आपण मराठीमध्ये म्हणतो. आणि झिझिफस, ठीक है, Sisyphus is the English name for it. I think it is the scientific name also. Scientific name पहला पार्ट है, हमने पढ़ा है scientific name, right? वो Sisyphus. एक बार क्रॉस चेक कर लेना गूगल पे. ऑलराइट, Sisyphus. और साइंटिफिक नेम जितने भी आप कलेक्ट कर सको, जो भी कॉमन कॉमन फ्रूट्स के हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना नहीं पूछेंगे, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में उतना ही पूछेंगे, लेकिन आगे जाके आपको हेल्प करेगा. ऑलराइट, बिकॉज दीज नेम्स आर वेरी डिफिकल्ट टू, पर मुझे भी बहुत प्रॉब्लम है. सो ये आप लिख लीजिए, ही आपको याद रहेगा. ठीक है. सो मैंगो, चिक्कू, एप्पल एक्सेट्रा. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सो ईच हैज अ डिफरेंट स्किन और शेल, फ्लैशी पार्ट एंड सीड. तो बेसिकली हमें जैसे फ्लावर का एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, जिसमें कोरोला, कैलिक्स थे, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, वैसे ही फ्रूट भी ऐसे स्ट्रक्चर से बना है. ठीक है. दैट इज शेल which protects the fleshy part of the food. The fleshy part itself which contains nutrients. ठीक है. Nutrients which is edible. All right. Fleshy part is the thing which we eat, and those fleshy part contains seed. Okay. This seed helps in reproduction again. Seed grows into new plants. All right. So in case of fruits like cashew, its seed is outside the fruit. So there are some fruits जिनके सीड बाहर होते हैं. ओके, बेसिकली सभी मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स के जो सीड है अंदर ही रहते हैं. नाउ योर वन एक्टिविटी इज कि आपको ऐसे फ्रूट्स के बारे में पता करना है गूगल पे जाके. ठीक है, लिख के रखो साइड में कि राइट द नेम ऑफ द फ्रूट्स हुज सीड इज आउटसाइड. ठीक है. ऑलराइट, समझा? ओके, ठीक है. सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, सो द सीड पी. मैंने बोला था लास्ट पैराग्राफ एक इंपॉर्टेंट चीज देता है हमें. ओके, लेट्स सी दैट. सोक द सीड्स ऑफ पी. पी मतलब ये क्या बोलते हैं, वटाने शायद बोलते हैं इसे, पीस, हरे वटाने. वीट, राइस, जोवार, ग्राउंडनट in water for 3 to 4 hours. Press the seeds with your fingers and observe them. Which seeds get divided into two equal parts? Okay. स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि monocots get divided into only one part and dicots get divided into two parts. Yes, this is this. All right. So seeds which get divided into two equal parts are called dicotyledonous. Okay. डाई का मीनिंग होता है दो, आप ऐसा याद रख सकते हैं. डाई का मीनिंग होता है दो. Seeds which do not divide into two equal parts are called monocotyledonous seed. मोनो का मीनिंग होता है जस्ट सिंगल, वन. ओके. कॉटिलेडन्स का मैंने अर्थ बताया था, इसका होता है कवरिंग. ठीक है. ओके. सो डाइकॉट्स मैंने जैसे बताया था कि ये क्या करते हैं कि इनकी जो सीड है, डाइकॉट्स के जो सीड है या डाइकॉट सीड है, उसमें दो पार्ट डेवलप होता है. ओके. अंदर ही लीफलेट जैसे पार्ट्स मैंने बताए थे, लीफलेट के पार्ट्स अंदर डेवलप होते हैं. ठीक है.
ये दो पार्ट्स में से एक पार्ट ग्रो करता है प्ल्यूमुल में, PLUMUL, प्ल्यूमुल, ठीक है, और एक पार्ट ग्रो करता है रेडिकल में। ओके, और जो रेडिकल है दैट गेट्स डेवलप्ड इनटू रूट एज वी हैव लर्नड, राइट, एंड द प्ल्यूमुल गेट्स डेवलप्ड इनटू स्टेम। और जो रेडिकल से जो फॉर्म रूट है उसे क्या कहते हैं, रूट। ठीक है, तो लिंक कर पा रहे हो कि मैंने एक डिफरेंस में बताया था एक पॉइंट, कि जो प्लांट्स जो टैप रूट शो करते हैं, ओके, वो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं, या फिर उनके सीड्स जो होते हैं वो डाइकोट्स होते हैं। ओके, because the dicots gets divided into two parts, that is radical and what we call plumule. ओके, और ये रेडिकल और प्यूमल वाली थियरी या कंसेप्ट होता है हमेशा टैप रूट प्लांट्स में आता है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यस, और मोनोकॉट्स में एक ही पार्ट डेवलप होता है, ओके, विच डेवलप्स इनटू स्टेम, ऑब्वियसली। ठीक है, और ये स्टेम के बॉटम से फाइब्रस रूट्स आने शुरू होते हैं। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक किंगडम प्लांटी के बाद हमने जस्ट डोर ओपन कर लिया है किंगडम प्लांटी का। ये डोर के आगे बहुत सारी चीजें हैं जो, क्या शेयर किया है यार, ओके, प्लीज डोंट शेयर दिस थिंग्स हेयर, ओके। सो डोर ओपन किया और बहुत सारे डिटेल में पता चलेगा प्लांट्स के बारे में आगे के स्टैंडर्ड्स में। आप ये एक्सरसाइजेज है, प्लीज ये एक्सरसाइजेज अपने ओर से ट्राई कीजिए। कुछ सारे होमवर्क दिया था, ओनली वन स्टूडेंट हैज सबमिटेड दिस, प्लीज सबमिट दैट होमवर्क एज सुन एज पॉसिबल। और ये सभी एक्सरसाइज आपको ट्राई करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, अब तक हमने बायोलॉजी पढ़ा। होमवर्क अभी होमवर्क है, मैं गूगल क्लासरूम में कल अपलोड कर दूंगा ये लेक्चर, ठीक है। और अब तक जो भी जिसने भी होमवर्क नहीं किया है, कौन से भी अब तक मैंने जितने भी अपलोड किए सभी करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले सभी के सभी होमवर्क आ जाने चाहिए। यू टोल्ड वन सबमिटेड, यस, वन स्टूडेंट हैड सबमिटेड द होमवर्क विच वाज गिवन इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। सो विल ना, और बायोलॉजी बहुत हो गया, बायोलॉजी बहुत पढ़ लिया मैं, हमने दो लेसन पढ़ लिए। अभी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, कुछ डाउट अब तक किसी को कुछ और पूछना है? वी आर गोइंग वेरी स्लो, स्कूल के हिसाब हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं। तो कैन यू शो प्रीवियस लेक्चर, शो प्रीवियस लेक्चर होमवर्क, ओके। होमवर्क मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर लिया है, आपको दिख जाएगा वहाँ पे। आई हैव अपलोडेड द होमवर्क इन द गूगल क्लासरूम। बेसिकली यही मैंने डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, और एक मैंने अपने ओर से दिया था डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, वेरी इंपॉर्टेंट, कैन कम टू योर एग्जाम, ठीक है। टैप रूट एंड वेरियस पार्ट्स कंप्लीटेड, ओके, ठीक है। तो अपलोड भी किया कीजिए। आई डोंट गेट अ प्रीवियस लेक्चर होमवर्क, अरे आई हैव अपलोडेड इन द गूगल क्लासरूम, ठीक है। दोज हु आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, okay, you have uploaded, all right, I will check, ठीक है। those who are getting this problem that they are not getting the homeworks in the Google Classroom, please communicate with the sir at the earliest, all right। Sir, then hello, okay, sir. I was not able to hear you। अच्छा, क्या बोलना है, आप कमेंट कर सकते हो, यू डोंट हैव टू टर्न ऑन योर माइक, ठीक है। वी आर स्टॉपिंग हियर, कुछ डाउट है तो अभी बताओ। नहीं, सर, okay, what is the problem? Shall I end the lecture? Is anyone having any doubts?
No, no. So exams are going to start. So where we can see recorded video. See recorded video, you go on YouTube, type Santosh Takle. ठीक है, go on YouTube and type Santosh Takle, and you on his YouTube channel you will see all the recorded videos. सभी standards के. So can I share the link now? Okay, share the link. Actually there is no need to share actually. बहुत easily आपको YouTube चैनल पे मिल जाएगा. ठीक है, सर से या मैम से आप कम्युनिकेट कीजिए. ऑलराइट, सो आई एम एंडिंग द लेक्चर यार नाउ. ठीक है, द होमवर्क विल बी अपलोडेड टुमारो और बाय डे आफ्टर टुमारो. ठीक है, बाय बाय. ओके, लिंक शेयर कर दिया है, आप किसी को देखना रहेगा तो देख सकते हैं. ठीक है, सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.